Good morning, everyone, and welcome to Indrashil University. Most of our students have joined physically and they are present on the campus because government has given the notification and has given permission. So students are here physically also. Still, they are joining live to this webinar. And we welcome Sumesh sir to Indrashil University Cloud. And now I quickly hand over the charge to Abhinand sir for his opening remarks. Yeah, good morning to you all, students, and thank you, Sumesh ji, for taking out his precious time. You know, he is handling a very crucial portfolio in Cadila Pharmaceutical Purchase, and he has taken out his precious time. So thanks to them and all the students. It will be worthwhile to listen to Sumesh ji. Sumesh ji himself is a chartered accountant. He has managed finance controller job of our CSPU, formulation. So he's a stalwart in financial function for a pharmaceutical company, and you can get lot of insight from him. And today, sitting at the portfolio of purchase head, so he's controlling more than 700 crore of purchase, sitting at one place. So he knows in and out of what is happening in the pharmaceutical industry, specifically the MSc API guy students. They will get insight if you can ask questions to him about what is happening with API excipients. You know, this market is highly volatile, specifically with the COVID and Atmanirbhar Bharat. So the function of purchase is quite crucial. And that's why a topic which is quite pertinent, road to success. And Sumesh ji has a lot of wisdom and experience to guide you with road to success. And he has driven not only Cadilla's any SBU, but other in past into roads of success. So now over to Sumesh ji, and thank you all. Whenever they are there at the campus, he is going to give you a live lecture. But hopefully all the students will be enjoying the campus life. They will be enjoying the canteen life. Yes, sir, and they I will are request enjoying. Namrata ji, you must start those old days, you know, chocolate day and other things which they have missed. Yes, sir, definitely. Before sir. I reach there, you must have the program. Yes, so sir, we'll have flash mobs also, sir. Oh, that's good. Very good. Yes, sir. And they have made the campus buzzing and vibrating also at the same time with new faces, new colors. So over to Pradeep, sir, before I invite Sumesh, sir, and one of the students is waiting to officially introduce Sumesh, sir. So Pradeep, sir. Thank you so much, Abhinand, sir, for setting a beautiful context of this session. And just I will say two lines, sir. Sumesh, sir, हम और सुमेश सर एक ही बिल्डिंग में इनफैक्ट बैठते हैं, ऊपर और नीचे भी बैठते हैं, बट मतलब कभी बात नहीं हुई. शायद हम लोग हमेशा पास होते समय शायद कई बार मिले होंगे. एक बहुत अच्छा सर मौका है हमारे लिए, क्योंकि हम आपके बारे में जानते हैं, बट आपको नहीं. आज शायद मौका मिलेगा कि आपके बारे में भी जाने और आपको जाने अच्छी तरह से. सो इट्स अ वंडरफुल दिस थिंग. जैसा सर ने बोला, बहुत डिफिकल्ट डिपार्टमेंट है, बहुत क्रिटिकल डिपार्टमेंट है, बहुत क्रूशियल डिपार्टमेंट है परचेज. बिकॉज ऐसा हम लोग बोलते हैं सर, सेल्स एंड मार्केटिंग में कांटो भरा ताज है. तो सर उसमें 12 साल से अगर है यहाँ पे कैडिला में, तो मतलब इट इटसेल्फ शोज अ ग्रेट रोड टू सक्सेस. आई थिंक सर हमारे लिए बहुत एक अच्छा अवसर है आपको सुनने का सर, और आपसे सीखने का. एज अ ट्रेनर भी मेरे लिए काफी सारा इसमें मेरे को मालूम है कि मिलने वाला है, which I will definitely use in my session, sir. Thank you so much, sir. Welcome you on board, sir, and thank you for accepting this invitation. Thank you, sir. Thank you, Pradeep, sir. Now I invite Vishwa. You can unmute yourself and please go ahead with the introduction part. Yes, ma'am. Am I audible? Yes. Good morning to one and all. Greetings to Abhinand sir, Pradeep sir, Dean of School of Science, Dr. Bharti ma'am, Sumit sir, Namrata ma'am, all faculty members and my dear friends. On behalf of Indrashil University, I, Vishwa Shah, would like to extend a very sincere and warm welcome to our speaker, Sir Sumesh Goswami. Sumesh sir brings over 2 decades of experience in finance. At Cadila, he has held key finance positions in manufacturing, R&D, and the chemicals SBU as finance controller. After successfully increasing the cost saving, he joined the purchase function as a head. Goswami sir has a track record of planned, strategic purchases and aggressive negotiations. It is a glorious moment for all of us to hear from you, sir. We will be surely enriched by this webinar. Thank you so much. Thank you, Vishwa. And
Now it's time for Sumesh sir to take the charge. Thank you, Vishwa. You are a wonderful speaker. So I don't know whether I'll be able to speak as good as you are, but let me give it a try. So thank you for inviting me. It's really a pleasure to address such bright students. I mean, though I cannot see the students, but I can feel the presence of a vibrant team, a vibrant student strength. And okay, so I mean, these days, you know, you have so much of exposure. The students are given so much of exposure. वो एक्सपोजर हमारे टाइम पे नहीं था. हमारे स्कूल कॉलेजेस में इतना एक्सपोजर नहीं होता था. बट कैडिला आपको इतना एक्सपोजर दे रही है. आपको जो इंडस्ट्री के जो स्टालवर्ड्स हैं वो आपको आके अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, आपकी जर्नी के बारे में बताते हैं. तो दैट विल रियली हेल्प यू ऑल. I am not going to, probably people would have given you, you know, शायद महात्मा गांधी का वो दिया होगा, नरेंद्र मोदी के एग्जांपल्स दिए होंगे. मैं आपको ऐसे कोई एग्जांपल्स देने वाला नहीं हूँ. इस लीडरशिप टॉक में मैं आपको सिर्फ अपने ही एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं अपने बारे में शायद ज्यादा अच्छी तरह आपको समझा पाऊंगा कि आज यहाँ तक पहुंचने में मुझे क्या कुछ करना पड़ा. मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, और मैं आपको सही बताऊं तो स्कूल में मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था. मैं पढ़ाई को कभी इतना सीरियसली लिया नहीं. और शायद आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मजे कर रहे होंगे. करने भी चाहिए. स्टूडेंट लाइफ में मजे नहीं करेंगे तो और कब करेंगे. तो इस यंग एज में मजे करने भी चाहिए. स्कूल के बाद जब कॉलेज में गए और जब अपना प्रोफेशनल कोर्स शुरू किया, तब रियलाइज हुआ कि स्कूल में और कॉलेज में तो आप किसी भी तरह पढ़ के पास हो जाते हो, पर एक प्रोफेशनल कोर्स जब आप करने लगते हो तो उसके अंदर पास होना इजी नहीं है. सीए में 2.5-3% से ज्यादा का रिजल्ट नहीं आता है, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो वैसी मेहनत जब सोचा कि यार अब तो अगर जिंदगी बनानी है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो बहुत मेहनत करके सीए क्लियर की. तब ये रियलाइज हुआ कि इतनी मेहनत अगर स्कूल में की होती तो यू नो वहां पे भी डिस्टिंक्शन आ सकता था. तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई आप बहुत मेहनत से करें, खूब मन लगा के करें, बहुत मेहनत से पढ़ाई करें. आगे जाके जैसे मुझे पछतावा हो रहा है, वैसे आपको पछतावा ना हो कि यार उस समय अगर पढ़ाई कर लेते तो अच्छा रहता. बहुत बार होता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमको अच्छे नहीं लगते, और हम शायद ऊपर से उनको किसी तरह यू नो पास होने के हिसाब से सिर्फ तैयारी करते हैं. मेरा एक कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो है कि द ओनली वे आउट ऑफ अ डिफिकल्टी is to go through it. अगर कोई आपको समस्या है, कोई परेशानी है, तो उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि उसके अंदर घुसो. उसके अंदर घुसोगे तो बाहर निकल पाओगे. अगर उसमें घुसोगे नहीं, बाहर ही रहोगे, तो वो आपको कभी भी उससे बाहर नहीं निकलने देगी. वो आपको हमेशा पकड़ के ही रखेगी. एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको. मेरे स्कूल टाइम पे मुझे साइंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी. तो साइंस में से मैं थोड़ी कन्नी काटता था, नहीं पढ़ता था, मजा नहीं आता था. तो बस उतनी तैयारी करता था कि किसी तरह पास हो जाओ. पर जब मैंने अपना प्रोफेशनल कोर्स किया, उसके अंदर एक साइंस का और इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट था. अब वो देख के मुझे बुखार आ गया, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट कभी था नहीं. पर मैंने उस सब्जेक्ट अब अगर मैंने उसमें तैयारी नहीं की तो हो सकता है मैं फेल हो जाऊं. मैंने उसमें फिर मैं घुस गया. उसमें मैंने इतनी तैयारी की कि बाकी सारे जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा नंबर मेरे साइंस और इंजीनियरिंग में आए.
I scored 85% in that subject, and which helped me to get through. So what I want to say is, the only way out of a difficulty is to go through it. So अगर आज आपके पास में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि आपके फेवरेट नहीं है, या आपको थोड़ा परेशानी होती है उनको समझने में, पढ़ने में, उसमें आप घुस जाओ, उसको जी जान से मन लगा के अगर आप उसको मेहनत करके पढ़ोगे, अपने टीचर्स के पीछे पढ़ो, उनको बोलो कि आपको समझाएं, आपको मजा आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो सब्जेक्ट्स वो निकलेंगे जिसमें आप ज्यादा एक्सेल करेंगे। तो मेहनत लगा, खूब मन लगा के पढ़े, मेहनत करके पढ़े। एक मेरा फेवरेट कोट और है कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। और वो भी उसी का एक पार्ट है कि जब आप असफल होते हो तो इसका मतलब यही होता है कि आपने वो सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया। तो सफलता के लिए एकदम पूरे मन से प्रयास करना बहुत जरूरी है। पढ़ के अभी आप एक्सेल करेंगे, अभी आप खूब मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अल्टीमेटली फिर आप जॉब में जाएंगे या बिजनेस में जाएंगे। ऐसा मैं आपको मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ कि जब मैंने सीए क्लियर की तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ बन गई, अब तो लाइफ बहुत बहुत इजी रहेगी। जिस कंपनी में मैं जाऊंगा मुझे कैबिन मिलेगी, मेरी एक सेक्रेटरी होगी शायद, और बहुत आसान जिंदगी होगी। पर जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, बहुत बड़ी कंपनी थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, भीलवाड़ा शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स, आजकल बीएसएल के नाम से जानते हैं उसको। वो मेरी पहली कंपनी थी। जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन की एज अ मैनेजर फाइनेंस, तो आई रियली गॉट अ शॉक ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे बाकी दूसरे सब स्टाफ के साथ मुझे भी एक टेबल देके बिठा दिया गया और बहुत सारे बिल्स मेरे सामने रख दिए कि ये बिल्स चेक करो। तो तब ऐसा लगा यार कि ये इसीलिए ये प्रोफेशनल कोर्स किया था क्या। तो इस तरह के जो शौक्स हैं, और हाँ मैं आपको बताऊं कि मुझे मेरा पहला कैबिन मुझे मिला 12 साल बाद। तो जब आप जॉब करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें आपको शायद ऐसा लगे कि यार ये वो ऐसा नहीं था, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है। बट मेहनत करेंगे, अच्छा मन लगा के काम करेंगे, तो आपने जो सोच रखा है वो आपको मिलेगा ही। इसलिए कभी मतलब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अपन नीचे से ग्राउंड लेवल से जो काम करते हैं तो आप राइज करते ही हैं उसके अंदर। एक आप स्टूडेंट्स को एक चीज और बतानी थी। अभी ये शायद आपका 3 या 4 साल का, कितने साल का कोर्स है आपका पता नहीं, 3 साल का होगा या 4 साल का होगा? इंजीनियरिंग का 4 साल है और बीएससी का 3 साल है और एमएससी का 2 साल है। ओके, तो ये जो 2, 3, 4 साल के जो आपके कोर्स हैं, इसमें अगर आपने अभी परेशानी उठा ली, मेहनत कर ली, तो आपके आगे के जो 50-60 साल की जो आपकी जिंदगी है वो आराम से निकलेगी, अच्छे से निकलेगी, आपका एक अच्छा करियर होगा। स्कूल कॉलेज में कई बार हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग पेरेंट्स से दूर होते हैं, हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई बहुत जरूरी है ये दिमाग में नहीं रख के थोड़ा मौज मस्ती ज्यादा कर लेते हैं। तो ये अगर 3-4 साल हमने मौज मस्ती कर ली तो आगे के जो 50-60 साल हैं वो प्रॉब्लम में गुजर सकते हैं। और ये जब 3-4 साल अगर आपने मेहनत कर ली तो आगे की जिंदगी आपकी बहुत अच्छे से निकल सकती है। सर, क्लास इज गोइंग, I'll call you. Sorry. So these are some of the things I thought I should let you know. Another thing is that during the course of your
स्टडीज, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर जॉब, बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जब आपको लगेगा कि बहुत आदमी गलतियां कर लेता है, कई बार आदमी फेल भी होता है ना। तो वो फेलियर को कभी फेलियर से हताश नहीं होना, उस फेलियर को अपनी अपॉर्चुनिटी समझो, क्योंकि वो उस फेलियर को दिमाग में रख के और फिर आपको पता चल जाता है कि आप क्यों फेल हुए। उस एक्सपीरियंस को आप यूज करके और फिर अगर आप मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली एक्सीड करोगे। तो फेलियर से कभी हताश नहीं होना। फेलियर्स जो है वो जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है, और फेल होने के बाद जो आदमी राइज करता है वो हमेशा आगे ही बढ़ता है। तो फेलियर से कभी डरे नहीं, कोशिश करें कि दूसरों से सीखें। मेरी बहुत बड़ी गलती रही है कि मैं आई हैव लर्न द हार्ड वे। मैं दूसरों के मिस्टेक से थोड़ा कम सीखा हूं, अपनी मिस्टेक से ज्यादा सीखा हूं। तो आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। दूसरों के मिस्टेक से सीखेंगे तो आप मिस्टेक्स कम करेंगे। सो लेट अस लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, अदर पीपल्स मिस्टेक्स। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग जो आपके हैं, अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो आप उनकी बात इसलिए मत सुनो कि वो बड़े हैं, आप उनकी बात इसलिए सुनो कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की है, और वो जो उन्होंने गलतियां की है इसलिए वो आपको कुछ अच्छी सलाह देते हैं, तो वो सुननी चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आप काफी आगे बढ़ेंगे। जब आप जॉब में जाएं, और या कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ लोग जॉब में जाएंगे, तो एक ये होता है कि ठीक है, जो मेरा जॉब है बस मैं वही कर रहा हूँ, जितना मुझे करने को बोला है मैं उतना ही करूंगा। अगर आप में जैसे कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे, तो सपोज कभी आप किसी फैक्ट्री में हैं, मेंटेनेंस जॉब में हैं, आप मशीन खराब हो गई, आपको लगा बेयरिंग खराब है, आपने बेयरिंग बदल दिया, तो हो गया काम, मशीन वापस शुरू हो गई। अपने काम के अंदर सिर्फ जो आप काम कर रहे हैं उससे आप आगे सोचें। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप ये देखें कि बेयरिंग जो खराब हुआ वो क्यों खराब हुआ, उसकी ग्रीसिंग प्रॉपर नहीं थी, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं था क्या, अगर आप उससे बाहर निकल के। सर आप प्लीज अनम्यूट करेंगे, तो आपका म्यूट हो गया है। सुमेश सर। अच्छा। हाँ, जी सर। हाँ, वो सेंसिटिव होता है थोड़ा सा। अच्छा। हाँ जी सर। तो कब से मैं अनम्यूट था? नहीं अभी सर, एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। ओके। तो अब अपने काम में कुछ वैल्यू एडिशन लाने की कोशिश करें। जब आप आगे जाएंगे, जब आपको समझ में आएगा कि आप कुछ ऐसा करो जिससे आप वैल्यू ऐड कर सको। तो जब आप उस तरह से सोचेंगे तो आप दूसरों से अलग रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। हमेशा ये सोचें कि मैं जो कर रहा हूं उससे कंपनी को कितना फायदा हो सकता है। कंपनी को फायदा होने के दो ही तरीके हैं, अच्छा काम करो, सेल्स बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, या खर्चा कम हो। अब ये जो मैंने एक बेयरिंग का जो एग्जांपल दिया है, अगर आप इसमें कुछ इनोवेशन लेके आते हैं, जैसे कि टाइमली उसकी ग्रीसिंग होती रहे, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता रहे, तो बेयरिंग्स पे खर्चा कम होगा, कंपनी का पैसा बचेगा, और कंपनी का पैसा बचेगा तो मैनेजमेंट के नजर में आओगे। सो हमेशा वैल्यू एडिशन सोचें, कुछ नया करने का सोचें, कुछ हटके करने का सोचें। और दूसरा ये कि कभी भी, जैसे आपने अगर जॉब शुरू कर दिया तो पढ़ना कभी मत छोड़ें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है, तो आपको हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। पढ़ाई कभी ना छोड़ें, जॉब भी करें, पढ़ाई भी करें। और दैट्स इट आई गेस। इतना अगर आप ध्यान रखें। कितना टाइम है मेरे पास?
सर 5-10 मिनट और है और कोई इंटरेक्शन भी होगा। आज हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार हैं, ही हेड्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट। वो भी कुछ उनको कुछ होता है, क्वेश्चन क्वेरी होता है। भारती मैडम है तो वो भी रहेंगे। तो है सर, आपके पास 5-10 मिनट और है सर, और फिर हम इंटरेक्शन करेंगे सर। ठीक है। तो मेरी जर्नी हमेशा फाइनेंस डिपार्टमेंट में रही है, और फाइनेंस में मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंस, बैंकिंग फाइनेंस, रेजिंग ऑफ फंड्स, ऐसा बहुत कुछ रहा है। कैडिला में आके मैं मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंस में था। फिर 1 साल बाद मुझे हमारा जो एपीआई डिवीजन है अंकलेश्वर में, जो केमिकल डिवीजन है, उसका मैं फाइनेंस कंट्रोलर बना। केमिकल डिवीजन के फाइनेंस कंट्रोलर के टाइम पे मुझे ये लगा कि मैं आपको बता दूं कि जो एपीआई इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा सा कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। प्रोडक्ट में मार्जिन्स बहुत स्क्वीज्ड होते हैं। फॉर्मुलेशंस की तरह बहुत अच्छे मार्जिन नहीं होते हैं, काफी स्क्वीज्ड मार्जिन्स होते हैं। तो अब मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप प्राइस बढ़ाएं प्रोडक्ट का, और या फिर उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम करें। प्राइस बढ़ाना बहुत इजी नहीं होता है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, पर आपके जो खर्चे हैं उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब मैं फाइनेंस कंट्रोलर था तो मैंने देखा कि हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हम किस प्राइस पे खरीद रहे हैं। और तो जैसा मैंने कहा कि आप अपने दायरे से थोड़ा बाहर निकल के सोचें, बाहर निकल के देखें। तो मैं अपने फाइनेंस के दायरे से मैं थोड़ा बाहर निकला, मैंने प्रोडक्ट्स देखे, मैंने उसकी परचेज प्राइसेस देखी, और उसके दूसरे वेंडर्स ढूंढे। तो पता चला कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हम खरीद रहे हैं उससे अगर आप दूसरे वेंडर से थोड़ा एग्रेसिव नेगोशिएशन करें तो कुछ अच्छे बड़े प्रोडक्ट्स मेरे को बहुत कम रेट के ऊपर उसके प्राइसेस मैंने फाइनलाइज किए, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। तो ये है कि थोड़ा अलग सोचें, वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें, अपने दायरे से बाहर निकलें, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सामने आती है। अब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी दिन परचेज डिपार्टमेंट हेड करूंगा। वो शायद इसीलिए हुआ कि मैं सिर्फ फाइनेंस में ही नहीं रह के मैंने इधर उधर थोड़ा फाइनेंस के बाहर निकलना शुरू किया, ओवरऑल बिजनेस देखना शुरू किया। मैं काफी जो हमारे मार्केटिंग हेड थे यहाँ पे उनके साथ मैंने काफी ट्रैवल भी किया है, मार्केटिंग भी की है मैंने उनके साथ, परचेज डिपार्टमेंट के साथ भी तब मैंने काम किया था। तो आज मैं पिछले 6 साल से परचेज पोर्टफोलियो देख रहा हूँ। और हमारे कैडिला में, अगर आपको पता होगा, एक कॉर्पोरेट कोर कमेटी है जो कैडिला को चलाती है, उसका मैं मेंबर हूँ। हम लोग मिलके 10 लोग हैं, हम लोग मिलके इस कंपनी को स्टीयर करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये है, आई गेस आई कैन टेक क्वेश्चंस नाउ। Sir, may I ask something? Sir? Yes, please. Sir, this is Pradeep Singh here, sir. And एक मेरा क्वेरी है कि जनरली सर ये लोगों को बहुत रहता है और ये बहुत कॉमन है कि हम ऐसे फंक्शंस में कई बार होते हैं कि हमारे लिए जो माल प्रैक्टिसेस यूज करना बहुत इजी होता है या बहुत हमारे लिए इजीली अवेलेबल होता है। तो इस यंग एज में या हम कैसे उन सब से बचें, खुद को अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये बहुत इजी है कि कोई भी आके हमको बोल दे कि आपको हम ये करो, हम ये कर देंगे। तो हाउ वन शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ? मेरे ख्याल से देखो, ऑनेस्टी तो बहुत बड़ी चीज है। मैं जब पहली बार जब मैं नौकरी करने गया था बीएसएल में, भीलवाड़ा सिंथेटिक्स में, तो मैं अपने ग्रैंडफादर से मैंने ब्लेसिंग ली, मैं उनके पैर छूने गया, उनको मैंने बताया कि मैं आज मेरा पहला दिन है। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि अगर तू किसी सेठ के यहाँ काम करने जा रहा है, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने जा रहा है, ईमानदारी से काम करना। अब ईमानदारी का मतलब बहुत बड़ा है, जो मुझे बाद में समझ में आया। ईमानदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप करप्ट नहीं हो, ईमानदारी का मतलब ये भी है कि आप बहुत ईमानदारी से अपना काम करें, अपना काम पूरे लगन से करें, पूरी मेहनत से करें,
अपने पूरे जी जान लगा के करें, वो दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी से काम करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। ये बहुत, यू आर राइट, बहुत आसान होता है फिसल जाना। शॉर्ट टर्म गेन आदमी सोचने लगता है, कभी शॉर्टकट्स मार देता है अपने काम को, सोचता है कि ऐसा करेंगे तो थोड़ा शायद बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा शॉर्टकट्स कभी काम नहीं आते हैं। उसमें मेहनत करनी पड़ती है। ऑनेस्टी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए, ऑनेस्टी आपके सक्सेस के लिए ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। तो कभी ऐसे शॉर्टकट ना मारे, कभी ऐसे लालच में ना आए। तो जैसे सीधी सी बात है ना, अगर मान लो कोई आदमी जैसे कोई मेहनत की खा रहा है पर लंबे टाइम के लिए खाएगा, और अगर कोई डिसऑनेस्ट होगा और सपोज उसने कुछ चोरी कर ली तो जेल चला जाएगा, तो उसकी शायद शॉर्ट टर्म के लिए उसको बहुत पैसा मिल जाएगा पर उसकी बाकी की लाइफ तो जेल में निकलेगी। सो ऑनेस्टी रखें एक लंबे समय के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए। सर इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। मान लीजिए कोई किसी डिपार्टमेंट में जाता है और वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ ऐसे ही चलता है और सब लोग यहाँ पे लेते हैं। सो वो आपको पता चलता है कि ऊपर से नीचे तक पूरा जो ब्रांच है, और पता नहीं सच है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन ऐसा वो बोलता है कि भाई सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो हमारा उस समय का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? प्रदीप जी, आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और मुझे शायद अपने ये स्पीच में ये बात बतानी चाहिए थी। मेरा ये मानना है कि अगर कोई काम एक ही तरह से काफी सालों से चल रहा है, इट सेल्फ प्रूव्स कि वो गलत तरीके से चल रहा है, क्योंकि चेंज तो आना ही चाहिए। हर काम के अंदर एक इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता ही है। तो ये मानना कि ये इसी तरह से चल रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही तरह से चल रहा है तो सबसे अच्छा चल रहा है, एकदम गलत है। उसमें बदलाव आना ही चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट आना ही चाहिए, और वो आना आसान नहीं है। इंप्रूवमेंट लाना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है। तो बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे लोग रियलाइज करेंगे और इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार होंगे मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस आंसर। एंड दूसरा सर, एक और मेरा प्रश्न है, बिकॉज आई विल बी टेकिंग नाउ द एरिया मैनेजर सेशन वेरी सून, और उसमें एक चीज आता है रोल शिफ्ट। जब आप एक रोल से दूसरे रोल में जाते हैं तो कई बार आपको उसी तरह ट्रीट किया जाता है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना एडोलेसेंस का टाइम, कि आप बच्चे से, और ना बच्चे आपको स्वीकार कर रहे हैं ना बड़े। तो जो रोल शिफ्ट का टाइम है वो कैसे आदमी को हैंडल करना चाहिए? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आदमी को सिर्फ अपने ही दायरे में नहीं रहना चाहिए। अगर वो वास्ट अपना एक ब्रॉड आउटलुक रखेंगे, अपनी स्टडीज बराबर करेंगे, जैसे मैंने बोला कि आप जॉब पढ़ाई भी करते रहे, तो जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा वो उतना बेटर आप उस चेंज्ड रोल को अडेप्ट कर पाएंगे। और क्योंकि अब आप उस रोल में तो आ ही गए, तो अब या तो आप ये है कि आप जबरदस्ती अपनी वाली चलाएं वहां पे, बट वैसा करने में मजा नहीं आएगा। तो लोगों को साथ में लेके चले, लोगों को साथ में लेके चलेंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट तभी करेंगे जब आप उनसे बेहतर होंगे। आपको अपने आप को लीडर प्रूव करना पड़ेगा, और लीडर प्रूव करने के लिए आपके पास वैसा एक्सपीरियंस और वैसा नॉलेज होना चाहिए। तो वैसा नॉलेज, वैसा एक्सपीरियंस आपके पास है। जैसा मैंने आपको बोला, अगर वैसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको नॉलेज आएगा ही, आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। बट अगर आपके पास वैसा नॉलेज, वैसा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको शायद वो रोल एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए। Sir, I wanted you to give an advice to our students. Hello.
Yeah, sure. Madam, बोलिए बोलिए. Yeah, this is the general. None of us are from corporates. Namrata madam she's worked in a corporate, so we do not have any idea. The general trend that I've seen amongst the students, we after their MSc, we place them in one corporate company. Suppose that company is offering them about 12 to 13,000, and the student is not satisfied, and within 2 or 3 months, when the other corporate offers about 14,000 to 15,000, just a hike of 2 to 3,000, the student changes company immediately within 3 months. So what should the students see once they are placed for their own success? I don't think anybody has touched upon this topic, and I usually say this among the students, and I've personally experienced it. They come to me, okay, madam, we are changing. Okay. So from their success point of view, what should they look into? Yeah. Is it feasible? Is it advisable to do just for money? It is definitely, madam, it is definitely not advisable. Like I said, short-term view कभी नहीं होना चाहिए. Short-term view से नुकसान ही होता है. So now when you have joined a company, in the initial at least 2 years, you should not look at yourself. Your main aim should be to grab as much as knowledge you can, grab as much as experience you can. See, अगर आप 2-3 महीने में 3-4 महीने में अगर आप छोड़ देंगे, तो सामने वाली कंपनी जब आपको लेगी या फ्यूचर जब आप 10-12 साल बाद कभी और कुछ चेंज करेंगे, और वो कंपनी जब ये देखेगी कि यार ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते हैं, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है. जहां आपका थोड़ा सा एक लंबा टेन्योर होता है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है. लंबे टेन्योर से आप जिस कंपनी में आप हैं, उस कंपनी के इन्स एंड आउट्स आप सब कुछ जब सीख लेते हैं, तब आपको एक नई कंपनी में जाना चाहिए. तो पहले 2 साल आप सैलरी को ना देखें. हाँ, अगर गलती से कंपनी ही खराब है या कंपनी बहुत अच्छी नहीं है, या आपको लगता है कि वहां सीखने को नहीं मिल रहा है. कई बार होता है कि कंपनी कभी कंपनी भी अच्छी नहीं होती है, कभी कोई ऐसा एम्प्लॉय होता है जो अच्छा नहीं होता है, तब आप शिफ्ट करें. बट अगर आप शिफ्ट करें तो फिर कम से कम जो दूसरा आप सिलेक्शन करें, बहुत ध्यान से करें, और वहां कम से कम 2-3 साल तक अपना पूरा एक्सपीरियंस ले. फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छा जंप, एक अच्छी सैलरी मिलेगी. सर, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब तक वो काम सीख नहीं जाए अच्छे से, जब तक एक काम में अगर अपने पारंगत नहीं हो जाए, निपुण नहीं हो जाए, तब तक चेंज नहीं करना चाहिए. अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो भी, मतलब जितना हम कोशिश कर सकते हैं पहली जॉब खास तौर पे, जब तक अच्छे से सीख नहीं जाए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा लोग 1000-2000 के चक्कर में ही चेंज करते हैं. मैंने जितना मेरा सर एक्सपीरियंस है 22 साल का इंडस्ट्री में, तो मैक्सिमम जब मैं पूछता हूँ कि आपको इन हैंड कितना डिफरेंस आया, तो लोग यही बोलते हैं कि सर 1500-2000. मैं बोलता है आप इंसेंटिव में भी कमा सकते थे, या आप रुकते तो इतना आपको इंक्रीमेंट मिल जाता, या आप अपने आप को प्रूव करते तो इतना आपको इंसेंटिव मिल जाता. क्योंकि लोगों को थोड़ा सा दिख जाता है कि चलो तो वही काम करने पर थोड़ा ज्यादा पैसा मिल रहा है तो क्यों नहीं. बट जैसा आपने बोला है कि अगर उस काम को अच्छी तरह से सीखते नहीं हैं और हम थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, तो हमारे अगले एम्प्लॉयमेंट में बहुत इश्यूज आते हैं. बिल्कुल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि आप बहुत बार बार चेंज कर रहे हो, तो रोलिंग स्टोन्स को कोई जनरली जवाब देते नहीं है. फिर थैंक यू प्रदीप सर. अरुण सर कुछ रेज कर रहे क्वेश्चन. हमारे साथ आज एचओडी मैकेनिकल इंजीनियर के हैं. अरुण सर, आप प्लीज बोल सकते हैं. Okay. So first of all, I want to give a lot of thanks to Somesh sir, who provides us the roadmap to success. The first one is the only way to get out of difficulty is to go through it. Right. Learn from others' mistakes. Okay, it's a very fantastic. And third one is the continuous learning for upgrading value to the people. So my question is, there is one hurdle in getting success, and that hurdle is excuses, because both the things are not coming together. If there is excuses, there is no success. If there is success, there is no excuses. So how to convert excuses to execution? So my question is, how to convert excuses to execution, because not taking action never gives you a success. So for my point of view, please suggest me to my students that how to convert excuses to execution. Over to you, sir.
Yeah, like I said, that excuses means that we are afraid of something. We don't want to get into it. Um, like the example that I gave, that in your courses, there may be a subject which probably one student does not like. Let's say in BSc, probably someone likes chemistry, but he doesn't like physics. And if someone is good in physics, he does not like chemistry. So he will try to, like you say, he will try to excuse, he will try to just not put in his best into the subject. He will try to just probably cram as much that he will just कि ठीक है किसी तरह पास हो जाए. तो एक्सक्यूजेस से तो डेफिनेटली बचना चाहिए. एंड लाइक आई सेड दैट एक्सक्यूज का कोई रोल है नहीं जिंदगी में. जिंदगी में अभी हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, हम रोड टू सक्सेस की बात कर रहे हैं. तो रोड टू सक्सेस में एक्सक्यूजेस का कोई रोल नहीं है. हमको आपको उसमें मेहनत करनी ही है उसमें. एंड मैं बताऊं, अगर आप उसमें घुसेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, एग्जीक्यूशन, लाइक यू सेड, एग्जीक्यूशन मोड में जब आप जाएंगे तो आपको उसमें काफी मजा आएगा. क्योंकि जब आपको मजा तब तक नहीं आता है जब तक आपको पता नहीं कि वो एक्चुअली है क्या. जब आप उसमें डीप घुसेंगे, पढ़ेंगे, एक बार नहीं समझ में आता है, दो बार नहीं आता है, तीन बार नहीं आता है, 4 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ही. तो मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो तभी आप उससे बाहर आएंगे. एक्सक्यूजेस का तो कोई रोल है नहीं लाइफ में, अगर सक्सेसफुल होना है तो. बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन थे. थैंक यू अरुण सर, प्रदीप सर का भी और भारती मैडम का भी जो क्वेश्चन था, क्योंकि ये अभी बच्चे जो हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ प्लेसमेंट ऑल्सो, क्योंकि काफी लोग फाइनल ईयर में हैं. तो जो आपने ये कहा कि शुरुआत में स्किल सेट और नॉलेज गेन करना, एक्सपीरियंस गेन करना, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि जो मार्जिनल डिफरेंस ऑफ रेम्युनरेशन जो पार्ट है उसको नहीं देखना है. तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी. काफी समय से ये उलझन थी कि इसका बच्चों तक कैसे मैसेज जाए. तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारे लीडर्स ने ही ये क्वेश्चन पूछ रहे. कई बार स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन भी दिमाग में नहीं आता है, वो बस डिसीजन लेते चले जाते हैं. लेकिन डिसीजन लेने के पहले एक थॉट प्रोसेस भी होनी चाहिए, जो आज आपने उसको एड्रेस किया. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी सुमेश सर, जो आपने एकदम जो भी कहा एकदम दिल से कहा, और पूरा तत्व, पूरा सार आपने निकाल के बताया सीमित शब्दों में. शब्द सीमित थे लेकिन मैसेज बहुत गहरा था. तो ये जो मैंने महसूस किया, इसलिए लग रहा था कि बस वो चीजें टच करती चली जा रही हैं. हम आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स ने ये बिल्कुल अच्छी तरह से एब्जॉर्व किया होगा कि शुरू में जैसे बड़े हमको डांटते हैं तो उनका इंटेंशन डांटना नहीं होता है, उनका इंटेंशन हमारे को कुछ मैसेज, कुछ लेसन देना होता है. जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि मैंने दादा के पैर छुए, तो ये अगर फिर से हम समझ लें और छोटे छोटे अपने जो ईगोज है, छोटे छोटे हमारी सेंसिबिलिटीज हैं, और उसको जो है हम समझते चले जाएं, सेंसिबिलिटीज को उससे ऊपर उठे, तो शायद जिस मुकाम पे आज आप पहुंचे हैं बहुत कम समय में, इन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत, ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है और बहुत जल्दी एब्जॉर्व करती है चीजों को, अगर इस पे थोड़ा वर्क कर ले तो आई थिंक इंडिया को कोई स्टॉप नहीं कर सकता वर्ल्ड लीडर बनने में. जो हमारे पास लीडर्स हैं. भारती मैडम, आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा था. आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स हैं भी प्लेसमेंट के वर्ज में और आपके पास आते भी होंगे, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मैडम. थैंक यू सो मच. अरुण सर या भावेश सर, आपको कोई क्वेश्चन हो तो? नहीं है. ओके, थैंक यू. तो हम चित्रांगी, प्रदीप सर हो गया है? हाँ, ओके, थैंक यू सो मच सर. जी, तो मैं चित्रांगी को अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट करूंगी सो दैट शी कैन प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स. सर, वी लुक फॉरवर्ड कि आप कैंपस पे भी आए और वाइब्रेंसी को देख सके, महसूस कर सके. तो आपको एक इनविटेशन भी है सर, सब कुछ और नॉर्मल होने के बाद. सर नहीं, डेफिनेटली मैं आऊंगा. मैं आया हूँ वैसे, बट जी काम से आया था. जी सर. स्टूडेंट से मिलने का मौका नहीं मिला.
जी सर। आज के सेशन के बाद अब मुझे लग रहा है कि मुझे आना चाहिए। जी सर, बच्चे कल ही ज्वाइन किए हैं तो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम कॉलेज देखा, फर्स्ट सेमेस्टर इनका कॉलेज का घर पे बीता और ये अभी सेकेंड सेमेस्टर में स्ट्रेट अवे कॉलेज आए हैं, तो दे वांट टू एंजॉय टू द फुलेस्ट। ओके, ओवर टू चित्रांगी। Good morning to one and all presenting and attending the webinar. I, Chitrangi Vagmaria, on the behalf of Indrashil University and the student body, thank Sumesh sir for this informative and interesting webinar. The webinar was very helpful and I appreciate each word of yours. We learned that success is not final and failure is not fatal. It's the courage that matters. We have to continue at the stage we are and improve ourselves before we quit. I also thank Dean of School of Science, Dr. Bharti ma'am, Abhinand sir, Pradeep sir, Sumit sir, Namrata ma'am, and all other faculty members who arranged this Turning Point webinar. I also thank all the students who made this webinar successful. Thank you and have a nice day. थैंक यू चित्रांगी। सुमेश सर, फाइनल वर्ड हम आपसे सुनना चाहेंगे बिफोर आई से नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर, इंडीड इट वाज सो सरलता से, सहजता से और एकदम क्रिस्प, आपने बिल्कुल एक तत्व सार हमारे साथ में गुरु मंत्र शेयर किया सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी तो यही और नहीं, मुझे ये एक तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप सब टीचर्स वहाँ पे आप स्टूडेंट्स का इतना ध्यान रख रहे हैं और आप ये जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये दिखाता है कि आप कितना सीरियस हैं कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो निकल के उनकी लाइफ अच्छी बने, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट विशेस टू all you teachers and lot of best wishes to the students for a very good life in future. मैं जरूर आऊंगा वहां पे और मुझे मिलना है सब स्टूडेंट से। और कभी भी किसी स्टूडेंट को कभी भी जिंदगी में कुछ पूछना हो तो मेरा फोन नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, तो कभी भी आप you can reach out to me and I'll be glad to help you all. थैंक यू सो मच सर। जो आपने क्रेडिट दिया इंद्रशील यूनिवर्सिटी को और फैकल्टी को, इनका एक्चुअली लीडर जो है सीएमडी सर, हमारे मोदी सर हैं, जिनका ये था कि भाई हमारी इंडस्ट्री में, हमारी कैडिला में इतने अच्छे लीडर्स हैं तो उनका एक्सपीरियंस क्यों नहीं स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए। तो ये उनकी जो सोच है, जो हमारे लीडर जिस हिसाब से बैठे हुए हैं और उन्होंने सबको जो है लीडरशिप का जो है एक मौका दिया है शेयर करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ, तो सर्टेनली ये जो दोनों इंडस्ट्री और एकेडमिक का जो ये अद्भुत जो ये हमारा अभी प्लेटफॉर्म बना है टर्निंग पॉइंट, तो आई थिंक डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज ला सकता है। यही उम्मीद के साथ मैं आज एंड करना चाहूंगी। थैंक यू प्रदीप सर, आप हमेशा हम आपको बॉदर करते हैं कि आप हमको लीडर ला के दीजिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक आई ऑल्सो फर्मली बिलीव, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो सुनील सिंह सर ने मेरे को पहली बात बोली थी, अच्छे इंसान बनना, अच्छे प्रोफेशनल अपने आप बन जाओगे। तो आई थिंक ये जो हम टर्निंग पॉइंट कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन दैट मैनर। अगर हमारे स्टूडेंट्स अच्छे इंसान बनते हैं तो अच्छे प्रोफेशनल ऑटोमेटिकली बन ही जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, सुमेश सर, कि आपने एक बार में हमारा इन्विटेशन स्वीकार कर लिया सर। सो आई नो यू आर सो बिजी एंड सर इस बीच में भी सर गए थे मिलने सर को, आई थिंक समीर सर आए थे आपको मिलने के लिए। तो उतना बिजी शेड्यूल होने के बाद सर आपने इतना हमारे लिए समय निकाला, सो आई एम सो थैंकफुल टू यू। माय प्लेजर, थैंक यू। वी आर थैंकफुल टू, थैंक यू, नमस्कार। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. जय हिंद।